ষ্টুডিঅ'ত মই ভা মহন্ত আৰু নিউজ কাষ্টত আজিৰ দিনটোৰ সবাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগই আজি আমাৰ বাতৰি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছো সেয়া হৈছে যে অলিম্পিকৰ পৰা উভতি আহিছে ভাৰতীয় খেলুৱৈসকল আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে দিল্লী বিমান বন্দৰত এক আনন্দ উৎসৱৰ এক পৰিৱেশ আৰু তাৰ পিছতে যিহেতু দিল্লীৰ অশোকা হোটেলত সকলোকে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হৈছে গতিকে আজি সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে এই বিশেষ প্ৰসংগটোৰ ওপৰত কাৰণ যিকেইগৰাকী খেলুৱৈ আচলতে সমগ্ৰ বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত আমাক গৌৰৱান্বিত কৰিলে তেওঁলোকক আজি বিশেষভাৱে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আৰু সকলোৰে দৃষ্টি তেওঁলোকলৈ কাৰণ আমি জনাইছো যে আজি স্বদেশলৈ উভতি আহিছে ভাৰতীয় অলিম্পিক দল বিমান বন্দৰত উষ্ম আদৰণি জনোৱা হয় প্ৰথমে প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈক পদকপ্ৰাপ্ত খেলুৱৈসকলক তাৰ পাছতে হোটেল অশোকাত বিশেষ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় আৰু বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী আৰু উপস্থিত থাকি কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ ঠাকুৰে জনায় যে কিদৰে আচলতে আজি এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু নিশ্চিত প্ৰামাণিক প্ৰাক্তন অলিম্পিক খেলুৱৈসহ বহু কেইগৰাকী গণ্যমান্য ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণ দেখা পোৱা গ'ল আজিৰ এই অনুষ্ঠানত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে খেলুৱৈসকলক অভিনন্দন জনালে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক জনাইছো সেই খবৰ কিছু সময় পূৰ্বে যিহেতু এই অনুষ্ঠানৰ অন্ত পৰিছে আৰু সকলোৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ আজি এই বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত কাৰণ সকলোৱে আশা কৰি আছিল যে কেতিয়া স্বদেশত ভৰি দিবহি এই সকল খেলুৱৈ আৰু আজি তেওঁলোক উপস্থিত হৈছে স্বদেশলৈ উভতি আহিছে অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণ কৰা ভাৰতীয় খেলুৱৈসকল আৰু অলিম্পিকত অংশগ্ৰহণকাৰী খেলুৱৈসকলক আদৰিবলৈ যিহেতু সমগ্ৰ দেশবাসী সাজু হৈ আছিল গতিকে দিল্লী বিমান বন্দৰত সেই বিশেষ পৰিৱেশৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আপোনালোকক জনাইছো যে হোটেল অশোকাত কিছু সময় পূৰ্বে সেই বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ ইতিমধ্যে অন্ত পৰিছে আৰু এই অনুষ্ঠানত দেশবাসীয়ে আশা কৰি আছিল যে নিজৰ দেশত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে প্ৰতিগৰাকীয়ে খেলুৱৈ ব্যক্ত কৰিব নিজৰ অনুভৱ আৰু সকলোৱে নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰিছে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে সকলোৰে প্ৰতিক্ৰিয়া আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম প্ৰথমে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছো অনুৰাগ ঠাকুৰে কি মত ব্যক্ত কৰিছে Tokyo Olympics was an Olympic Games of many firsts for India. भारत के लिए बहुत कुछ पहली बार हुआ है तो टोक्यो ओलंपिक्स में हुआ है आज तक का सबसे बड़ा ओलंपिक दल इंडियन कंटिंजेंट 128 लोगों का गया आज तक के सबसे ज्यादा मेडल जीते तो 7 ओलंपिक मेडल्स इस बार भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं यही नहीं एथलेटिक्स में 121 साल इंतजार करना पड़ा लेकिन इंतजार जब पूरा हुआ तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीतकर उसको पूरा किया है राष्ट्रगान टोक्यो में बज रहा था लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का सिर गर्व के साथ हिंदुस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों में ऊंचा हो रहा था नीरज जी आपने केवल मेडल नहीं जीता भारतीयों का दिल भी जीता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी एक प्रेरणा के रूप में आप यहां पर आए मनप्रीत जी मैं तो यही कहूंगा मैं तो बत्रा जी के साथ हॉकी में भी था 41 साल इंतजार छोटा नहीं होता आपने और आपके साथी खिलाड़ियों ने भारत के लिए मेडल जीतकर देश के कोने कोने में जो जज्बा जुनून भरा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जोश और जीत की एक उम्मीद जो भरी है उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जे मनप्रीत सिंह का नाम लेता तो रानी रामपाल का नाम भी लेना ही पैना है हमारे जहां एक और पुरुष खिलाड़ियों ने हॉकी टीम ने वहीं पर महिला खिलाड़ियों ने भी ना केवल पहली बार क्वालिफाई किया बल्कि सेमीफाइनल में पहुंचकर भी शानदार जो आप खेले मैं कहना चाहूंगा पूरे भारत को अपनी बेटियों पर गर्व है यही नहीं हम यही नहीं रुके ये तो पहली बार सब हुआ है अदिति अशोक ने जो किया गोल्फ में पहली बार वो भी चौथे स्पॉट पर जाकर खत्म करना बहुत क्लोज मैच किया ये भी पहली बार हुआ है भवानी देवी ने जो फेंसिंग में किया है ये पहली बार हुआ है क्वालिफाई करना यही नहीं नेत्रा ने पहली बार किसी ने किया है हमारे सेलर के रूप में और यही नहीं एशियन रिकॉर्ड भी अगर ओलंपिक्स में किसी ने बनाया तो मेंस 4x400 मीटर ने
हमारा हिस्ट्री इसमें क्रिएट किए, एशियन रिकॉर्ड बनाया है। बेस्ट एवर फिनिश फॉर इंडियन रोअर्स अर्जुन लाल और अरविंद सिंह ने रोइंग लाइटवेट डबल स्कल्स इवेंट में किया है। हमारे नेशनल रिकॉर्ड स्टेपल चेस में अविनाश साबले ने किया है। ऐसा मैं कहूं तो जो बहुत कुछ है जो पहली बार हुआ है, और ये पहली बार इसलिए हुआ कि आपने डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन में विश्वास किया। पूरी दुनिया कोविड की लड़ाई लड़ रही थी, आप भी लड़ रहे थे, लेकिन जहां एक और सरकार, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने एंड टू एंड आपको सारी सुविधाएं देने का प्रयास किया, दुनिया भर के अलग अलग देशों में सुविधाएं देने का प्रयास किया, वहां पर आपने भी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी और भारत को रिकॉर्ड मेडल जिताने का काम किया। आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। वैसे नीरज जी, चूरमा और गोलगप्पे तो हम आपको भी खिला नहीं पाए, सिंधु को आइसक्रीम नहीं खिला पाए। अब प्रधानमंत्री जी जिस दिन बुलाएंगे तो सबको खिलाएंगे। और जिस देश के प्रधानमंत्री आपके जाने से पहले एथलीट से बात करें, हमसे पूछें किसकी ट्रेनिंग कहां पर चल रही, कैसे चल रही है, परिवार के लोगों का मनोबल गिरा तो नहीं है, किसी को कोविड तो नहीं हुआ, वैक्सीनेशन हुई कि नहीं हुई, और अगर हमारी टीम कोई हार भी गई तो अगले इवेंट के बीच में बात करके मनोबल बढ़ाने का काम भी जिस देश का प्रधानमंत्री करता हो उसका नौजवान पीछे रुकने वाला नहीं। और खेल मंत्री के रूप में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, मैं तो स्वयं खिलाड़ी रहा हूं, और एक बात कहना चाहता हूं कि खेलों में आपको किसी तरह की कमी, मेरे भाई किरण रिजिजू जी ने पहले नहीं रहने दी, मोदी जी के नेतृत्व में पहले ये खेल मंत्री थे, अब मेरे ऊपर जिम्मेदारी आई है। मैं तो 25 साल की उम्र से अब तक 21 साल तक स्पोर्ट्स में अलग अलग फेडरेशन एसोसिएशन में रहा, बीसीसीआई का अध्यक्ष भी रहा। इतना ही कहूंगा, आपने इस बार साथ लिए हैं तो अगली बार के लिए देश के हर कोने में, उत्तर से लेके दक्षिण तक, पूर्व से लेके पश्चिम तक, लोगों के दिलों में आज जागी है। असम की बेटी लवलीना हमारे बीच में बैठी हैं, हमारे बीच में रवि दहिया, बजरंग पुनिया बैठे। क्या आपको नहीं लगता कि इनको देखकर लाखों नहीं करोड़ों लोग खेल मैदान पर उतरेंगे, और जब आज का युवा उतरेगा तो मेडल जीतने की आस के साथ उतरेगा, और 24 और 28 की ओलंपिक में हम इस रिकॉर्ड को तोड़कर भी ज्यादा मेडल जीतने का काम करेंगे। আৰু আজিৰে বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলোকে এনেদৰে নিজৰ কথাৰ উৎসাহিত কৰিছে, আৰু তেওঁ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ ব্যক্তিগত জীৱনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো দিশতে তেওঁ দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে, সকলোৰে প্ৰতিটো দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিছে, আৰু তেওঁ বক্তব্যত আচলতে সেই কথা স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাইছে। আৰু এইবাৰ আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আপোনালোকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ যিসকল খেলুৱৈ অলিম্পিকত পদক অৰ্জন কৰি গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে, আজিৰ এই মুহূৰ্তত নিজৰ দেশত ভৰি থৈ তেওঁলোকৰ প্ৰথম কি অনুভৱ, প্ৰথম কি প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছোঁ অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁইৰ মন্তব্যৰে। बहुत अच्छा लग रहा है इंडिया आके। वहाँ पे तो पता तो था ही कि इंडिया के लोग बहुत खुश है, हम लोगों ने मेडल लिया, और इंडिया आके मतलब इतना अच्छा लग रहा है, सबका इतना प्यार है, और हम लोग मेडल इंडिया के लिए लेके आ रहे हैं, सब कितना इंडिया के लिए मतलब शेयर कर रहा है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन हमारा बस यही कोशिश रहेगा कि आगे भी ऐसे देश के लिए मेडल लाते रहूं और देश का नाम रोशन करते रहूं। बस मैं यही सोच रही थी कि मुझे गोल्ड ही जीतना है, मुझे इंडिया को गोल्ड ही देना है। उस टाइम पे मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेडल मिल गया, ये भी नहीं सोचा था, बस मुझे गोल्ड ही चाहिए था, यही सोचा था। और आगे भी मेरा यही कोशिश रहेगी कि पेरिस ओलंपिक में मैं गोल्ड मेडल ही इंडिया को दिलाऊं। मैंने बस यही सोचा था कि हार जीत कुछ नहीं होता है, बस मुझे खेलना है, डरना नहीं है, बस अपना जितना भी है सब मैं उस गेम में ही दे दूं। बस मैं सही बताऊं तो उस दिन से सही तरह से सो नहीं पाए हैं, खा नहीं पाए हैं, लेकिन जब भी मैं एकदम इसको निकाल के देख लेता हूं ऐसा लगता है कि यार सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेहनत तो अच्छी हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं ये था मन में कि यार बहुत तगड़े कॉम्पिटिटर है हमारे, और मेरी वर्ल्ड रैंकिंग 4th चल रही थी, और कंपटीशन बहुत ज़बरदस्त था वहाँ पे। लेकिन क्वालिफिकेशन राउंड में जैसी थ्रो लगी, और उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे लाइफ का सबसे जो
तगड़ा मौका है ओलंपिक्स, और ये मैं नहीं छोड़ूंगा। और मुझे लगता है कि अपोनेंट को देख के और कॉम्पिटिटर को देख के कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे पहले ओलंपिक में, क्योंकि इतना अच्छा कंपटीशन होने के बावजूद भी और इतने अच्छे एथलीट होने के बावजूद भी हमने गोल्ड जीता है। तो मुझे लगता है कि बस अपना 100% दो और किसी से घबराओ मत। बिल्कुल जी, वो जो शरीर का एफर्ट लगता है तो पता लग जाता है कि हाँ ये थ्रो कुछ अलग है, और मुझे लगा था कि मेरा पर्सनल बेस्ट थ्रो है, लेकिन वो थोड़ा उससे कम था, और बस वो फील हो जाता है। और फिर उसके बाद जो अगले दिन सुबह फील हुआ कमर में, शोल्डर में, एल्बो में, तो पर वही है कि अपने पास मेडल है तो ऐसा लगता है कि कोई बात नहीं, चाहे इंजरी हो जाती तो उसको भी देख लेते। अच्छा, आखिरी में आपके जो लंबे बाल थे, दैट मेन वाज वेरी फेमस। यहाँ आते आते मेरे को 2-3 शैम्पू वालों के फोन आ गए हैं, जेल वालों के फोन आ गए हैं कि नीरज के वो लंबे होंगे। एवरीवन वांट्स यू एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जी, मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही 9-10 साल से लंबे बाल रख रहा था, और अभी वो तंग करने लगे थे। मैं 2-3 कंपटीशन खेल रहा हूँ, उसमें वो पसीना आ रहा था, आंखों पे गिर रहे थे, और मैंने वो सिर पे वो क्या पट्टा ही बांध के देख लिया, टोपी भी डाल के देख ली, वो सब गिर जाता था लाइन से आगे। तो मैंने सोचा कि यार ओलंपिक है, ऐसा कोई स्टाइल बाद में हो जाएगा, गेम पहले है। और जो इंजरी की बात है, काफ़ी हेल्प मिली मुझे इस टाइम इंजरी में। जब मैंने भी बात करी इंजरी के लिए तो साई के जो हमारे डीजी साई हैं संदीप प्रधान जी, काफ़ी हेल्प करी मेरी रसिया में कि भाई किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत है तो आप हमें बताइए। लगातार डॉक्टरों के टच में रहे, तो इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपनी तरफ से। और ये था कि भाई लास्ट बाउट थी मेरी, पहले तो मैं रिस्क नहीं ले सकता था। फिजियो बोले कि भाई आप टेप के साथ खेलो, तो उसमें सामने वाला ये नहीं देखेगा, सामने वाला भी मेडल के लिए आता है कि भाई हमें मेडल जीतना है, तो वो ये नहीं देखता कि भाई सामने वाले को इंजरी है, वो हमारी बाउट है। तो मैंने यही सोचा लास्ट बाउट है, अगर टूट भी जाएगा तो कोई नहीं, उसके बाद रेस्ट कर लेंगे, पर ये लास्ट बाउट है और ये जिंदगी बदल सकती है, तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश। এনেদৰে টকিঅ' অলিম্পিকৰ পৰা উভতি আহি দেশৰ মাটিত ভৰি থৈ পদক বিজয়ীসকলে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে। লাভলীনা বৰগোহাঁই, নীৰজ চোপ্ৰা, বজৰং পুনিয়া, ৰবি কুমাৰ দাহিয়া সকলোৱে ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ মনৰ অনুভৱ। সমান্তৰালভাৱে আমি জনাইছোঁ যে আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানত যিহেতু দেখা পোৱা গ'ল যে বহু কেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল। ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় ক্ৰীড়া মন্ত্ৰীৰ গৰাকীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি আগবঢ়াইছোঁ। এইবাৰ আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ओलंपिक से वापस आए हमारे जितने भी ओलंपियंस हैं भारत के, और खास करके जो मेडल लेकर के आए हैं, नीरज चोपड़ा, रवि दहिया, हमारे हॉकी के कैप्टन मनप्रीत, लवलीना और बजरंग, और हमारे बीच में आज नहीं है मीराबाई चानू और पीवी सिंधु, हम लोग उनको मिल चुके हैं। खेल मंत्री जी ने उनको रिसेप्शन करके उनको बात भी हो गया उनसे। और हमारे जितने भी लौटे हुए यहाँ आज के दिन में टोक्यो से वापस आए हमारे जो सुपरस्टार्स यहाँ बैठे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बिहाफ से आज आपको स्वागत करने के लिए आए माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, उनके खेल के राज्य मंत्री प्रमाणिक जी, हमारे खेल सचिव रवि मित्तल जी, हमारे युवा अफेयर्स के सचिव उषा शर्मा जी, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा जी, हमारे डीजी साई संदीप प्रधान जी, और जितने भी फेडरेशंस के यहाँ आए हुए, मैं देश के करोड़ों लोगों के तरफ से मैं जितने भी मेडल लेके आए हैं आप सबको अभिनंदन करना चाहता हूं। हमारे लिए एक गौरवपूर्ण एक क्षण है जिसको शब्दों में हम कह नहीं सकते। These are moments where you cannot express the happiness in words. इसको सिर्फ महसूस कर सकते हैं आप, ज़बान पे इसको कुछ बोलने से काफ़ी नहीं होते, इतनी खुशी मिलती है। और जब हम लोग देख रहे थे आप लोग को टोक्यो में आप लोग खेल रहे थे, हम लोग इतने हजारों किलोमीटर इतने दूर थे हिंदुस्तान में, लेकिन हम लोग का भी शरीर दर्द हो गया क्योंकि हम लोग भी खेल रहे थे आप लोग के साथ में जोश में, और पूरा सपोर्ट सुबह सुबह 5 बजे उठ करके, और प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक बच्चे, गांव, शहर, हर एक कोने कोने पूरे भारतवर्ष में चीयर फॉर इंडिया कर रहे थे। खेल मंत्री जी तो पूरा चीयर फॉर इंडिया लीड करके कहां कहां उसने मैसेज को नहीं फैलाया।
पूरा देश, ऐसा माहौल मैंने जिंदगी में देखा नहीं है जो इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में चेयर फॉर इंडिया के इस नारे के साथ पूरा भारत देश हमारे खिलाड़ियों के साथ खड़ा था। ये ऐसा पल है जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, और जब खेल में जो खिलाड़ी खेलते हैं तो पूरा कंट्री यूनाइट हो जाते हैं। तो धन्यवाद आप लोगों को, आप लोगों ने हिंदुस्तान को मजबूत एक धागा में बांध के रखा, और आज आप लोगों ने जो कारनामा किया है, हम लोग सब पूरे भारतवर्ष बहुत ही गौरव महसूस करते हैं। आप लोग को शायद मालूम नहीं होगा, जब ओलंपिक तैयारी चल रही थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि खिलाड़ियों के लिए टोक्यो में खाना पीना से लेकर के आपका रहन सहन पूरा तैयारी की थी, लेकिन कोविड आते आते सारा प्लान में चौपट हो गया और स्पेक्टेटर्स के बिना ये ओलंपिक का आयोजन हुआ है। वरना आप लोगों के लिए क्या नई तैयारी की थी और भी, लेकिन अब ये पैंडेमिक महामारी तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी टेलीविजन के माध्यम से आप लोगों का जो कारनामा है, आप लोगों ने जो दमदार परफॉर्मेंस किया, सबने देखा है। ये महिला टीम, रानी रामपाल, उनके दोस्त जितने टीम है, आप लोगों ने इतना रुलाया उस दिन हम लोगों को, लेकिन वो गर्व का आंसू थे। हम लोग बहुत प्राउड थे कि आप लोग मेडल नहीं लाए, लेकिन मेडल से बड़े आप लोगों ने पूरा हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। और प्रधानमंत्री जी ने आप लोगों से बात किया, वो वीडियो देख करके हर एक भारतीय ने रोया है, सबका आंसू बहा है, बहुत इमोशनल मोमेंट था। फिर बाद में धीरे धीरे हम लोगों ने सोचा कि आप लोग जो भी हो, आप लोगों ने इतिहास रचा है, 7 मेडल लेके आए हैं, वो भी 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, रवि दहिया और बजरंग पुनिया, रेसलिंग में मनप्रीत टीम, हॉकी वाला लवलीना, ये बॉक्सिंग में मीराबाई, वेट लिफ्टिंग पीवी सिंधु, बैडमिंटन में 6 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन में मेडल लाना ये पहली बार हुआ है। और एथलेटिक्स में गोल्ड मेडल लाना, तो मैं आज ये भी याद करना चाहता हूं कि मिल्खा सिंह जी का जब मेरा साथ बात हुआ था, उन्होंने ये बात उनके मुंह से निकली थी कि जब तक मैं जिंदा हूं, मैं ओलंपिक में एथलेटिक्स में मेडल लेके आया देखना चाहता हूं। तो मैं उस दिन नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक गोल्ड मारने के बाद उन्होंने अपना गोल्ड मेडल को मिल्खा सिंह जी के नाम में डेडिकेट किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए। আৰু কিৰণ ৰিজিজুৰ পাছত আজিৰে বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অনিশিত প্ৰামাণিকে তেওঁ খেলুৱৈসকলক স্বাগতম জনোৱাৰ লগতে তেওঁলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে তেওঁ ব্যক্ত কৰিলে নিজৰ মনৰ ভাৱ। ओलंपिक के जो विजेता है, जिनके लिए देश की शान, देश की तिरंगा, देश की ध्वज शान से लहराया, सभी के बीच में उपस्थित हो पाकर अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। सभी खिलाड़ी यहां पर उपस्थित है जो भारत की शान को बढ़ाया। एक खिलाड़ी के लिए वो पल सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, सबसे ज्यादा गर्व की होता है, जब उनकी उत्तम प्रदर्शन के कारण से, उनकी उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण से देश की झंडा शान से लहराते हैं। और आज यहां पर सारे खिलाड़ी उपस्थित हैं। मैं ये सोचता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, उन्होंने जो सपना देखा था कि भारत की हर एक प्रांत, चाहे वो छोटा सा गांव हो, चाहे वो शहर हो, वहां से प्रतिभाओं को ढूंढ के निकलकर हर एक छोटा से छोटा गांव से जो खेल प्रतिभा है उनको ढूंढ के निकालकर वो विश्व स्तरीय, विश्व के स्तर में उनको लाना है। और उनका जो सपना है, उनका सपना धीरे धीरे साकार होते हुए हम लोग देख रहे हैं। ये सबसे बड़ा आनंद की चीज है। आज भारत की खेल मंत्री, पूर्व खेल मंत्री किरण रिजिजू जी यहां पर उपस्थित है, एवं वर्तमान खेल मंत्री आदरणीय अनुराग जी भी उपस्थित है। मैं उन लोगों को भी तहे दिल से धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा जिस तरह से
हर एक छोटा से छोटा विषय पर ध्यान दिया गया। ओलंपिक के लिए हम लोगों का जितना भी खिलाड़ी भारत की प्रतिनिधित्व करने के लिए टोक्यो पहुंचा, उन लोगों के छोटा से छोटा समस्या को भी हल करने के लिए जिस तरह से दोनों आदरणीय मंत्री ने हर वक्त बत्रा जी के साथ बातचीत करता रहा और उसको समाधान करता रहा, इसलिए मैं तहे दिल से उन लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। और सबसे बड़ा चीज, जैसे कि महाभारत में भी अर्जुन ने द्रोणाचार्य के पास प्रशिक्षण लेके महावीर महायोद्धा बना, वैसे ही मैं सोचता हूं यहां पर उपस्थित हर एक विजय खिलाड़ी के पीछे एक एक द्रोणाचार्य है, एक एक गुरु महागुरु है। आज यहां पर उपस्थित सारे जो प्रशिक्षक हैं, सारे गुरु महागुरुओं को भी मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आज आप लोगों की वजह से भारत की ध्वज शान से लहरा रहा है, इसलिए भारत की बेटी और भारत की सुपुत्रों को मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। आप लोग देश की गर्व हो, आप लोगों की वजह से देश की शान, देश की मर्यादा और वृद्धि हो गया। फिर से एक बार सभी को मैं नमन करके मेरा वाणी को यहाँ पर विराम देना चाहूंगा। আৰু আছিলে স্বদেশলৈ উভতি অহা ভাৰতীয় অলিম্পিক দলটোক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। আৰু এই মুহূৰ্তত নিউজ কাষ্টত আমি পৰৱৰ্তী খবৰলৈ আগবাঢ়িব বিচাৰিছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে শেহতীয়া খবৰ, আৰু এই খবৰ হৈছে শিশু পৰ্যবেক্ষণ কেন্দ্ৰৰ পৰা 9টাকৈ শিশুৱে পলায়ন কৰিছে। যোৰহাটৰ মালোৱালীস্থিত কেন্দ্ৰত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আৰক্ষীৰ তৎপৰতাত 7টা শিশুক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে, আন 2টা শিশু এতিয়াও সন্ধানহীন। কিছুদিন পূৰ্বেও সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা। শিশু গৃহৰ পৰাই পলাইছিল 4টা শিশু। শিশু গৃহত নিম্নমানৰ খাদ্য যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি পুনৰ 9টাকৈ শিশুৱে পলায়ন কৰে, আৰু এই 9টা শিশুৰ 7টা শিশুক ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। কিন্তু এতিয়াও আন 2টা শিশু পলাতক অৱস্থাত আছে, সন্ধানহীন হৈ আছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে কিছুদিন পূৰ্বে অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। যিকেইটা শিশু গৃহৰ পৰা পলায়ন কৰিছে, তেওঁলোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে নিম্নমানৰ খাদ্য তেওঁলোকক যোগান ধৰা হয়, আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকে আচলতে শিশু গৃহৰ পৰা এনেদৰে পলাই যাবলৈ বাধ্য হৈছে। আৰু ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ নিউজ কাষ্টত যে আজি দিল্লীত উপস্থিত হৈছেহি অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু যিহেতু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বিশেষ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত লাভলীনা বৰগোহাঁই অংশগ্ৰহণ কৰে, আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত 12 আগষ্টত অসম পাবহি অসম কন্যা লাভলীনা বৰগোহাঁই। আৰু সেই দিনটোৰ কাৰ্যসূচী আমি জনাব বিচাৰিছোঁ। পুৱা 9:30 বজাত তেওঁ বৰঝাৰ বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰিব, যিখন বিমানেৰে তেওঁ আহিব, আৰু বিমানবন্দৰত তেওঁক আদৰণি জনাব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিৰাপত্তাৰ প্ৰশাসনিক দিশ পৰ্যবেক্ষণ মন্ত্ৰী বিমল বৰাই। বিমানবন্দৰৰ পৰা পোনে পোনে যাব তেওঁ তাজ বিমানতলৈ। বিয়লি 3 বজাত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত অভিনন্দন অনুষ্ঠান। কোভিড পৰিস্থিতিৰ বাবে অনুষ্টুপীয়াকৈ এই আদৰণি অনুষ্ঠান হ'ব বুলি বিমল বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জানিবলৈ দিছে। আৰু 12 তাৰিখৰ দিনটোলৈ এতিয়া সকলোৱে অপেক্ষা কৰিছে। অসম কন্যাগৰাকীয়ে পদক লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ সাক্ষাতৰ বাবে, তেওঁ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিবৰ বাবে সমগ্ৰ অসমবাসী অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছে। অহা পৰহিলে 12 তাৰিখে লাভলীনা বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়ানী আহি আমাৰ 12 তাৰিখে আহি উপস্থিত হ'বহি, আৰু বিশ্বৰ আটাইতকৈ ক্ৰীড়া জগতৰ মহামঞ্চত তেওঁ চব প্ৰতিভা আৰু দক্ষতাৰে উজলি উঠাৰ লগতে আমাৰ দেশবাসী তথা অসমবাসীকো গৌৰৱান্বিত কৰিলে। আৰু সেইকাৰণে আমি সকলোৱে মিলি তেখেতক আদৰি জনোৱাৰ প্ৰস্তুতি আমি চলাইছোঁ। তাৰ কাৰণে আজি আমি সকলোৱে কেনেধৰণে লাভলীনা বৰগোহাঁই অসমৰ মাটিত পদাৰ্পণ কৰাৰ পিছতে আদৰণি জনাম, সেই ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যৱস্থা সম্পৰ্কত আমি পৰ্যালোচনা কৰোঁ। কোভিডৰ সময় পাৰ ভঙা উচ্চাসেৰে আমাৰ সকলোৰে আদৰাৰ মন নিশ্চয় আছিলে, কিন্তু আমি যিহেতু এই মহামাৰীৰ লগত যুদ্ধ দি আছোঁ, তাৰ লগে লগে ইমান আনন্দৰ বতৰায়ো আমাক আহ্লাদিত কৰিছে। সেইকাৰণে কিছু কোভিড প্ৰট'কল মানি যাতে আমি এই গোটেই অনুষ্ঠানটো আদৰণি অনুষ্ঠানটো কৰিব পাৰোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত আমি মনোযোগ দিছোঁ।
12 তাৰিখে ঠিক 9:30 বজাত আহি তেখেতে আহি উপস্থিত হ'বহি আৰু ইয়াৰ পৰা পোনে আমি তেওঁক লৈ যাম গুৱাহাটীৰ যি তাজ ভিভান্তা হোটেল আছে তাতে কিছু সময় তেওঁ জিৰণি ল'ব আৰু 3 বজাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ প্ৰেক্ষাগৃহত তেখেতক আদৰণি জনাব। আৰু নিউজ কাষ্টত আমি আপোনালোকক জনাই আছোঁ টকিঅ'ত ইতিহাস ৰচি উভতি আহিছে লাভলীনা আৰু এতিয়া ওলাহে নধৰা হিয়া গোলাঘাট জিলাবাসীৰ লাভলীনাৰ গাঁও বৰপথাৰৰ 12মুখীয়াবাসীক এইকেইদিন যেন উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰ প্ৰাবল্যই নিশা শুবলৈ দিয়া নাই। ঘৰৰ ছোৱালীজনী উভতি আহিছে ব্যস্ততা সমগ্ৰ জিলাখনতে ৰাস্তা হৈ গ'ল এতিয়া ৰঙা দলিচাখন পাৰিবলৈ বাকী মাত্ৰ লাভলীনাক আদৰিবলৈ কোলাঘাটৰ বৰপথাৰ 12মুখীয়াৰ ৰাইজ ইমানেই উত্ৰাৱল যেন ৰাইজখনেই আগবাঢ়ি আহিব বিমান বন্দৰলৈ আমি মানে নথৈ আনন্দিত হৈ আছোঁ এতিয়া উল্লাসত আমি থাকিব পৰা নাই মানে কি কেনেকৈ তাইক আদৰিম আমি ভাবি পোৱা নাই পথৰুৱা বাটেৰে বিশ্বমুখী যাত্ৰা আৰু বহু দূৰ বাকী কিন্তু প্ৰথমবাৰলৈ বিশ্ব ক্ৰীড়াৰ সৰ্ববৃহৎ সমাৰোহ অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা আহৰণ কৰিয়েই 12মুখীয়া গাঁৱৰ ছোৱালীজনীয়ে ৰচনা কৰিলে অসমৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ নতুন বুৰঞ্জী জয়মতী মূলাগাভৰুৰ দেশৰ পৰা অলিম্পিকলৈ যোগ্যতা অৰ্জন কৰা প্ৰথম অসমীয়া মহিলা লাভলীনা ইতিহাসৰ আৰম্ভণিও তাতেই আৰু জীৱনৰ প্ৰথম অলিম্পিকতে পদক অৰ্জনেৰে অলিম্পিক পডিয়ামত থিয় হ'বলৈ সক্ষম হোৱা প্ৰথম অসমীয়া ৰূপে নতুন পৰিচয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল লাভলীনা আকৌ বুৰঞ্জী বৰপথাৰৰ জীয়ৰীক লৈ আজি উলাহৰ ঢল সমগ্ৰ দেশজুৰি কিয় পিছ পৰি থাকিব ছোৱালীজনীক শিশু অৱস্থাৰ পৰা মৰম চেনেহৰ অনুশাসনেৰে আবদাল কৰি অহা গাঁওখনৰ ৰাইজ গাঁওবাসী মানুহে ফুলাম গামোচাৰে আদৰিম বুলি বা গায়ন বায়ন লৈ আদৰিম বুলি প্ৰস্তুতি হৈ আছোঁ বাইক ৰেলীয়ে গোলাঘাট সদৰ বা ৰঙাজানৰ পৰা তেওঁক আদৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছোঁ বৰপথাৰ নগৰৰ মাজমজিয়াত তেওঁক ৰাজহুৱাকৈ সম্বৰ্ধনা প্ৰদান কৰিম 11 আগষ্টৰ দিনা গুৱাহাটী আহি পাবলগীয়া লাভলীনা বৰপথাৰ পাবহি 12 আগষ্টৰ দিনা এদিন ঘৰৰ মানুহবোৰৰ লগত কটাই আকৌ দিল্লীলৈ উভতিব দেশৰ স্বাধীনতা দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত এইবেলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিশেষ অভ্যাগতৰ তালিকাত টকিঅ' অলিম্পিকলৈ যোৱা ভাৰতীয় দলটো অন্যতম 15 আগষ্টৰ দিনা লাভলীনা থাকিব লাগিব দিল্লীত জীয়েকক আদৰি অনাৰ বাবে সোমবাৰে দিল্লীলৈ ৰাওনা হৈছে লাভলীনাৰ পিতৃ টিকেন বৰগোহাঁই 11 তাৰিখে আমি অসমলৈ গুৱাহাটীত নামিমহি আৰু দিনটো অসম চৰকাৰৰ কিবা কাৰ্যসূচী আছে সেই তাত অংশগ্ৰহণ কৰি আমি 12 তাৰিখে ৰাতিপুৱা ঘৰমুৱা হ'ম গুৱাহাটীৰ পৰা ইফালে লাভলীনাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে ঘনে ঘনে বৈঠকত বহিছে কোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন যাতে জিলাখনত সম্পূৰ্ণ কোভিড বিধিৰ মাজেৰে সম্পন্ন কৰিব পৰা যায় লাভলীনা বৰগোহাঁইক আদৰণিৰ সকলোবোৰ কাৰ্যসূচী সৰুপথাৰৰ পৰা নবীন বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আৰু নিউজ কাষ্টত এবাৰ জনাব বিচাৰিছোঁ কাইলৈৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'বলগীয়া নতুন SOP সন্দৰ্ভত আৰু কাইলৈৰ পৰা নতুন SOP আজি ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু এই SOP অনুসৰি সকলো জিলাত একেই সময়ত সান্ধ্য আইন বিয়লি 6 পৰা পুৱা 5 বজালৈ সান্ধ্য আইন থাকিব পুৱা 5 বজাৰ পৰা বিয়লি 5 বজালৈ খুলিব পাৰিব দোকান পোহাৰ অৰ্থাৎ এতিয়া যিহেতু 4 বজালৈকে খোলাৰ অনুমতি আছে গতিকে 1 ঘণ্টা আৰু সময় বঢ়াই দিয়া হৈছে গতিকে এতিয়াৰ পৰা আপুনি 4 বজাৰ পৰিৱৰ্তে 5 বজালৈকে সকলো দোকান পোহাৰ ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান খুলিব পাৰিব আন্তঃজিলা যাতায়াত প্ৰত্যেকবাৰে যিহেতু SOP প্ৰকাশৰ সময়ত সকলোৰে মনত থকা প্ৰশ্নটো হৈছে যে আন্তঃজিলা যাতায়াত কেতিয়া খুলি দিয়া হ'ব কিন্তু জনাব বিচাৰিছোঁ যে আন্তঃজিলা যাতায়াত পূৰ্বৰ দৰেই বন্ধ থাকিব 15 আগষ্টৰ পিছত আহিব কোভিডৰ নতুন নিয়মাৱলী আৰু আজি কোভিডৰ এইসমূহ আজি নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ পাছত কোৱা হৈছে যে বিবাহ অন্তিম সৎকাৰ সৰ্বাধিক 10 জনৰ অনুমতি অৰ্থাৎ পূৰ্বৰ যিখিনি নীতি নিৰ্দেশনা আছিলে 5 বজাৰ এই সময় সলনি বাকি সকলোখিনি একে আছে বুলি ক'ব পাৰি 15 আগষ্টৰ পিছতহে নতুন SOP প্ৰকাশ পোৱাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু কোৱা হৈছে যে এইখন SOPত হয়তো আন্তঃৰাজ্যিক যি যাতায়াত সেয়া হয়তো পুনৰ খুলি দিয়া হ'ব পাৰে বা কিছু শিথিলতা আহিব কিন্তু সেই সকলোখিনি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যে সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব আপোনাৰ মোৰ আমাৰ সকলোৰে ওপৰত আমি যিমানেই সাৱধানতা অৱলম্বন কৰোঁ সিমান সোনকালে পৰিস্থিতি উন্নত হ'ব বুলি তেওঁ মত ব্যক্ত কৰিছে
সোমবাৰে যি SOP হৈছিল তাৰ পিছত আজি সোমবাৰ আজিলৈকে থাকিল অহা কালিৰ পৰা নতুন SOP বলবৎ হ'ব সেই বিষয়ে আপোনালোকক মই জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ এইটো হৈছে আজি দিনটোত আমাৰ যি ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যন এইটো আগৰ দৰে একেই থাকিব ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যন খোলা নহয় ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিউনিকেশ্যন একেধৰণে থাকিব আজিৰ দিনটোত অসমৰ দুখন জিলাৰ বাদে লখিমপুৰ আৰু গোলাঘাটত আছিল 1 বজালৈকে দোকান বজাৰ খোলা আৰু 2 বজাৰ পৰা কাৰফিউ পুৱা 5 বজালৈকে আজিৰ দিনটোত আমি থিৰাং কৰিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সিদ্ধান্ত লৈছে যে অসমৰ সকলো জিলাতে আজি অহা কালিৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা গধূলি 5 বজালৈ 12 ঘণ্টাৰ বাবে দোকান বজাৰ খোলা থাকিব আৰু সন্ধ্যা 6 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5 বজালৈ 11 ঘণ্টাৰ বাবে কাৰফিউ থাকিব এইটো এসপ্তাহৰ বাবে থাকিব অহা 15 আগষ্টৰ পিছত নতুন SOP হ'ব আৰু তাত কিছু হয়তো শিথিলতাৰ কথা বিবেচনা কৰা হৈছে নতুন SOPত আমি কিছুমান কথা বিবেচনা কৰিছোঁ আজি যেনেকৈ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া বা বিবাহ আদি অন্য সেৱা সকামত আমাৰ 10 জন লোকক সীমিত কৰা হৈছে সেই কথা এতিয়া বলবৎ থাকিব বা অন্যান্যখিনি যিখিনি ব্যৱস্থা আদিৰ ধৰণে আছে থাকিব কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ অহা SOPত আমি ইয়াৰ কিছু শিথিল কৰিব পাৰিম ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানেই হওক অন্যান্য অনুষ্ঠানেই হওক এইখিনি আমি হয়তো 15 আগষ্টৰ পিছত আমি সীমিত সংখ্যক লোকৰে আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিবেচনা কৰি আছোঁ এইটো নিৰ্ভৰ কৰিব এই